سے کھجور بھی دی، اور سب لڑکے کو روانہ کیا اور خود حضرت وہب کے پاس پہنچ گئے، حضرت آمنہ کے والد گرامی کے پاس پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کہا وہب میں عبد المطلب ہو، جانتے ہی ہو؟ کہا یار آپ کو نہیں جانوں گا تو کس کو جانوں گا، آپ عبد المطلب ہو، کعبہ کے متولی ہو، کعبہ کے مجابر ہو، آپ کو تو عرب و عجم جانتا ہے کہ عبد المطلب جس کا نام ہے وہ کعبہ کا متولی ہے، وہ عبداللہ کا باپ ہے، جس کے حسن کا چرچا مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، شام میں ہے، مصر میں ہے، دمشق میں ہے، آپ اسی حسین بیٹے کے باپ ہو؟ تو عبد المطلب نے جھٹ سے کہا ہاں صرف باپ ہی نہیں ہوں، اسی عبداللہ کا پیغام نکاح تمہاری بیٹی کے ساتھ لے کر آیا ہوں، بولو تمہاری مرضی کیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہب جو ہے مارے خوشی کے اچھل پڑے اور کہا اللہ کی قسم میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو بھی آ کر بشارت دی ہے کہ تمہاری بیٹی آمنہ کا نکاح اللہ نے عرش پر عبداللہ سے کر دی ہے۔ اے عبد المطلب بس اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ لڑکے والے ہو، پیغام نکاح لے کے آؤ تو جھٹ سے شادی کرا دے۔ اللہ اکبر، دونوں خاندان راضی ہو گیا، دونوں قبیلہ راضی ہو گیا، دونوں گھر والے راضی ہو گئے، دونوں گھر والوں کے سربراہ راضی ہو گئے۔ اب سنو، مکہ المکرمہ ہے، وادی منی ہے، جمرات کے قریب، وادی منی میں جمرات کے قریب حضور کے والد عبداللہ اور حضور کی والدہ حضرت آمنہ کا نکاح رجب کے مہینے میں ہوا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کس مہینے میں ہوا؟ دن جمعرات کا تھا۔ دن کون سا تھا؟ دن جمعرات کا تھا، مہینہ رجب کا تھا، مقام وادی منی، بولو نا دور سے، وادی منی ہے، دن جمعرات کا ہے، مہینہ رجب کا ہے، دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب جمعہ کی رات آئی، رجب کا مہینہ، جمعہ کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل کر کے حضرت آمنہ کے شکم تک پہنچا دیا، حضرت آمنہ تک پہنچا دیا۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ اب دل لگا کر ذرا بیٹھو اور محبت سے ایک بار کہو سبحان اللہ۔ اب میں ولادت پڑھنے جا رہا ہوں، اب میں ولادت مصطفیٰ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم آپ تو آپ کی روح بھی جھومنے لگے گی، آپ کا ضمیر جھومنے لگے گا، آپ کا وجدان جھومنے لگے گا۔ محبت سے جو آپ بیان سن لے گا اللہ کی قسم بغیر مستی میں رہے وہ مانے گا نہیں، کیونکہ میں میلاد مصطفیٰ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرے شکم اطہر میں میرے بیٹے کا نور آیا ہے تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ مجھ کو بوجھ محسوس نہیں ہوا، یہاں تک کہ مجھ کو پتا بھی نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں نور محمدی آ گیا ہے، بلکہ مجھ کو بشارت دی گئی، خواب میں بتایا گیا اے آمنہ تیری گود میں نبیوں کا نبی آنے والا ہے، تیری گود میں نبیوں کا نبی آنے والا ہے۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں میرے شکم میں نور محمدی آیا کہ کمال ہی ہو گیا، کمال ہی ہو گیا، میرا مزاج ہرا بھرا رہنے لگا، میری طبیعت بالکل ایک دم مست رہنے لگی، میری مزاج بالکل سب دن سے اچھا رہنے لگا، اور حال یہ تھا کہ میرے بدن سے ایسی خوشبو آنے لگی، ایسی خوشبو آنے لگی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جب میں اپنی سہیلیوں کے پاس جاتی یا میری سہیلیاں میرے پاس آتی تو مجھ کو پکڑ کے میری سہیلیاں پوچھتی تھی آمنہ بتا اتنی مست خوشبو، اتنی اچھی خوشبو کہ جس کو کبھی ہم لوگوں نے سنگا نہیں ہے آج تک، یہ خوشبو تم کون سی خوشبو لگاتی ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے واللہ 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 اے میری سہیلیوں اللہ کی قسم میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، یہ خوشبو تو میرے لال کی خوشبو ہے۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے
नबी मेरे पास आता, हर महीना कोई ना कोई रसूल मेरे पास आता, हर महीना कोई ना कोई पैगंबर मेरे पास आता और बिशारत देकर जाता, आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में नबियों का नबी आने वाला है, सुल्तानुल अंबिया आने वाला है। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के। पूरा मजमा बोलेगा देखो कौन आए हैं आमना के। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। सुनो हजरत आमना फरमाती है कि अल्लाह की कसम जब नूर मोहम्मदी मेरे पेट में आया तो मेरे पेट में किसी तरह का कोई बोझ नहीं, किसी तरह का कोई दर्द नहीं, किसी तरह की कोई मतली नहीं, किसी तरह की कोई कई नहीं, किसी तरह कोई सर दर्द नहीं। आप लोग भी बाप हो ना, आपके घर में भी बच्चों की विलादत होती है ना, कभी अपनी माओ से पूछना या कभी अपनी बीवी को देखना, जब वो उम्मीद से हो अल्लाह की कसम, माँ किस मुसीबत से गुजरती है ये माँ ही जानती है, माँ किस हयात और मौत किस जिंदगी से गुजरती है वही जानती है। आज बेटा थोड़ा सा जवान होता है, थोड़ा सा कमाने लगता है तो माँ से मुंह चोरी करने लगता है, माँ की गलतियां निकालने लगता है, माँ को खुद रास्ता दिखाने लगता है। अल्लाह की कसम मेरे नौजवानों, तुम नहीं समझोगे कि माँ किसको कहते हैं। अरे जो बेटे के लिए अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दे उसका नाम है माँ। जो 9 महीने तक तेरा बोझ उठाती है उसका नाम है माँ। अरे जो तेरे पेशाब पर सोती है उसका नाम है माँ। अरे जो खुद भूखी रह के तुमको खिलाती है उसका नाम है माँ। जो खुद प्यासी रहकर तुमको पिलाती है उसका नाम है माँ। जो खुद पेशाब के बिस्तरे पे लेटती है और तुमको बचपने में अपने छाती पर लेटा लेती है उसका नाम है माँ। अरे जो माँ को चूम लेती है तब तुमको जन्म देने का हौसला पैदा करती है उसका नाम है माँ। ए मेरे जवान, अगर बीवी के चक्कर में हो या ससुराल वाले के चक्कर में हो या दोस्तों के चक्कर में हो या साथियों के चक्कर में हो या जवानी के चक्कर में हो या कम बुद्धि के चक्कर में हो, हर किसी के चक्कर में हो, अगर माँ से मुंहसोरी कर रहे हो, अगर माँ की गलतियां निकाल रहे हो, अगर माँ की कोई बात बुरी लग रही हो तो समझ लो कि शैतान ने तुमको अपना गुलाम बना लिया है, शैतान ने तुमको अपना मुरीद बना लिया है। अल्लाह की कसम, अगर माँ बात सुन भी करे तो बर्दाश्त कर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है, इसी में तुम्हारी कामरानी है। अल्लाह की कसम, माँ की 1 2 4 10 बोली, बाप ने 2 4 लफ्ज़ अगर खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेगा तो अल्लाह तुम्हें यहाँ भी नेमतों से नवाज देगा और वहां भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है कि मैं माँ बाप पर तकरीर करूं, मगर हाँ बात याद आ गई है। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे के खातिर सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के। पूरा मजमा बोलो आंगन में आमना के। देखो कौन आए हैं आमना के, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। बोल रहे हो आप लोग, लेकिन 2 4 लोग नहीं भी बोल रहा है क्या? वो गूंगा तो नहीं है? अगर गूंगा है तो लाओ यहाँ बैठाओ, आज मैं एक दुआ पढ़ दूं, क्या पता हुजूर की आमद का बयान हो रहा है वो गूंगा ठीक हो जाए। है कोई गूंगा आप लोगों में? नहीं है? सारे लोग बोल दो देखो कौन आए हैं। हाँ, देखो कौन आए हैं। आज जरा बोल ही रहे हो तो जरा मर्दों की तरह जोश में मोहब्बत में बाबा से बुलंद बोल दो ना, देखो कौन आए हैं रहमतों के साए हैं। पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। एक अच्छे की खातिर
سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں، ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر آمنہ فرماتی ہیں آدم علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں حبیب خدا آنے والے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں مبارکبادی دیتے ہیں آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں آخری نبی آنے والے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ آتے ہیں گواہی اور بشارت دیتی ہے آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں آمنہ مبارک ہو تمہاری گود میں نبیوں کا نبی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ فرماتے ہیں میرا بیٹا جیسے ہی میرے پیٹ میں آیا نور محمدی جیسے ہی میرے بدن میں آیا میرے بدن سے خوشبو آنے لگی اور ایسی خوشبو آنے لگی کہ میرا پورا گھر مہکنے لگا۔ میں جدھر سے گزرتی تھی وہ راہ مہکنے لگی، میں جس محلے میں رہتی تھی وہ محلہ مہکنے لگا۔ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں۔ آمنہ فرماتی ہے میرا تو حال یہ ہو گیا کہ میں راستے سے گزرتی تھی پیڑ ملتا تھا درخت ملتا تھا پیڑ پہاڑ ملتے تھے اور کیا کہتے ہیں پتھر ملتے تھے تو معلوم ہے پیڑ کہتا تھا پیڑ درخت گاچ پہاڑ پتھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ آمنہ فرماتی ہے کہ پیڑ پودے سلام کرتے تھے۔ آمنہ فرماتی ہے میری حالت یہ ہو گئی کہ اس دور میں جو میں جہاں سے پانی لانے جاتی تھی نا اس کا واٹر لیول پانی کی سطح بہت نیچے تھی، پانی کنویں میں بہت نیچے تھا، اٹھانے کے لیے بڑی رسی لگتی تھی، عورتیں لائن لگاتی تھی۔ ایک تو پانی کم اوپر سے پانی بہت نیچے اور تیسری بات پانی کو اٹھانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، عورتیں جمع ہو جاتی تھی لائن لگانی پڑتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب نور محمدی میرے بدن میں آیا تو میں پانی لینے کے لیے جاتی تھی نا تو مجھ کو دیکھ کر خود بخود مکہ کی عورتیں جگہ دے دیتی تھی کہ جگہ دے دو آمنہ آ رہی ہے آمنہ آ رہی ہے آمنہ آ رہی ہے۔ اور معلوم ہے جگہ کیوں دیتی تھی؟ سبحان اللہ۔ آمنہ کہتی ہے میں ایک دن پانی بھرنے کے لیے جانے لگی، پانی لانے کے لیے کنویں کے پاس جانے لگی تو میری سہیلی آ گئی، کہا آمنہ کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا پانی لانے جا رہی ہوں۔ تو سہیلی نے کہا پانی لانے جا رہی ہوں، پانی کا تو برتن ہے مگر تمہارے ہاتھ میں رسی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں بالٹی نہیں ہے۔ ارے رسی لو پانی کیسے اٹھاؤ گی، بالٹی لو پانی کیسے اٹھاؤ گی؟ آمنہ نے کہا یار سہیلی کیسی بات کرتی ہو، چھوڑو نہ رسی چھوڑو نہ بالٹی، پانی ہی تو لینا ہے، چلو میرے ساتھ۔ کہا یار آمنہ یہ کیسی باتیں کرتی ہو، پانی اٹھاؤ گی کیسی؟ کہا میرے ساتھ چلو تو صحیح۔ سہیلی چل پڑی۔ آمنہ ہے حضور کی والدہ ہے اور پانی لانے جا رہی، صرف برتن ہے رسی بالٹی سہیلی ساتھ میں ہو گئی کہ دیکھتے ہیں ہم بھی ذرا یہ پانی کیسے اٹھا لیتی ہیں، وہاں تو بڑی بڑی رسیاں لگتی ہیں، بالٹی ڈول کچھ نہیں، صرف پانی کا برتن، پانی لینی کیسے؟ سہیلی کہتی ہے میں گئی تو دیکھا کہ عورتوں نے دیکھا حضرت آمنہ کو اور جگہ دے دی۔ آمنہ آہستہ 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 کنواں کے پاس پہنچی اور کنواں کے پاس پہنچ کر منہ کے قریب جا کر صرف تھوڑا سا منہ آگے بڑھا کر اپنی آنکھوں سے پانی کی طرف جھانکا کہ سہیلی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی ابال مارنے لگا، کنواں کا پانی سیدہ آمنہ کے چہرے کو دیکھ کر جوش مارنے لگا۔ اب پانی ابال مار رہا ہے، جوش مار رہا ہے، کنواں تو گول ہوتا ہے، کنواں تو گول ہوتا ہے، ابال تو مار رہا ہے، پانی جوش میں ہے لیکن نہ ادھر نکل سکتا ہے نہ ادھر، نہ ادھر نکل سکتا ہے نہ ادھر کیونکہ وہ کنواں ہے۔ اور پانی جب ابال مارا تو پانی اوپر آ گیا، یہاں تک کہ منہ کے پاس آ گیا، یہاں تک کہ منہ سے پانی گرنے لگا اور پانی بہہ کے سیدہ آمنہ کے قدم کے پاس آ کے رک گیا اور پانی سیدہ آمنہ کے قدموں کو چومنے لگا۔ سیدہ آمنہ نے بغیر رسی کے بغیر ڈول کے پانی بھر لیا ہے۔ مجھے کہہ لینے دو کہ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ ایک اچھے کی خاطر سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا غور کیجیے، غور کرتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے۔ جب تک حضرت سیدہ آمنہ کنویں کے پاس کھڑی رہی پانی ابل ابل کر
खुद ब खुद। और जैसे ही सैयदा आमना वहां से चली, पानी नीचे 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 वहीं पहुंच गया जहां उसका घर था, जहां उसका मकाम था, जहां उसकी हद थी। अल्लाह अकबर। ये सैयदा आमना है, फरमाती हैं कि कोई बोझ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। रमजान हैदर कादरी फिरदौसी को बोलना दो कि भला मेरे हुजूर की वालदा को तकलीफ कैसे हो सकती थी? अरे जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आ रहे हैं, वो अपनी माँ के लिए ज़हमत कैसे हो सकते थे? देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। हजरत गिरामी, वक्त गुजरता चला गया, वक्त तेजी के साथ भागता चला गया, यहाँ तक के 9 महीने हो गए। कितने हो गए? 9 महीने। अल्लाह अल्लाह, 9 महीने गुजरे। हजरत आमना के शिकम पाक में नूर मुहम्मदी को कि 20 अप्रैल 570 या 78 ईस्वी और 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, रात जा रही है और सुबह सादिक आ रही है। अल्लाह की रहमत पुकार कर कहती है, जिब्रील 12 रबीउल नूर है, जिब्रील पीर का दिन है, जिब्रील रात गुजर रही है, सुबह सादिक आने वाली है। मालूम है आज खागदाने गीती में मेरा महबूब तशरीफ ले जाने वाला है। जिब्रील जन्नत को सजा दो, जन्नत की हूरों को सजा दो, जन्नत के गिलमान को सजा दो, जन्नत की बहारों में और इजाफा कर दो, जन्नत की रौनकों में और बढ़ोतरी कर दो, गिलमाने बहिश्त को जन्नती लिबास पहना दो, हुराने बहिश्त को जन्नती कपड़े पहना दो, जन्नत के बागो बहार में और मजीद निखार पैदा कर दो, आसमाने दुनिया से लेकर फर्शे गीती तक नूर की बरसात कर दो। मेरा महबूब जाने वाला है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 12 रबीउल नूर पीर का दिन, अल्लाह अल्लाह, एक रहमतों की हवा चली, बरकतों की हवा चली, शहादतों की हवा चली। देखो कौन आया है आमना के आंगन, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। दुनिया में जितने भी दरख्त थे सब दरख्त फलों से हरे भरे हो गए। दुनिया में जितनी जगह भी घासें थी सारी सरजमीन सरसब्ज़ो शादाब हो गई, बहारों की हवाएं चलने लगी, रहमतों की मूसलाधार बारिश होने लगी, पूरी दुनिया जगमगाने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील आ रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, एक झंडा मशरिक में गाड़ रहे हैं, एक मगरिब में गाड़ रहे हैं, एक काबा की छत में गाड़ रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि मेरे घर की छत फट गई। चुप रहिए आप भी और हम भी, अब 5 मिनट में दुआ कर लेंगे। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह। एक आप जलसा तो आप लोग को जलसा सुनने का तरीका बताने में लग जाएगा। बोलो मुस्कुरा के, और मुस्कुरा के बोलो। एक झंडा कहाँ? मशरिक में, दूसरा झंडा कहाँ? मगरिब में, और तीसरा झंडा काबा शरीफ की छत में। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे घर की छत फट गई और नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। दाई जो उस वक्त मौजूद थी हजरत शिफा, वो फरमाती है कि अचानक मेरी निगाहें आंखें आसमान की तरफ उठी तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि आसमान के जो तारे हैं ना वो हजरत आमना के आंगन की तरफ झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं। हजरत शिफा फरमाती है कि मुझको लगा कि आसमान के तारे हजरत सैयदा आमना के आंगन में उतर जाएंगे। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। हजरत आमना फरमाती है कि अचानक मेरे सीने में, दिल में एक इस्तिराब पैदा हुआ, एक बेचैनी पैदा हुई, बेचैनी बेचैनी। और जैसे ही बेचैनी पैदा हुई ना तो अचानक एक परिंदा आया और उसने
उसने अपने पर से मेरे सीने को मस किया, और जैसे ही उस परिंदे ने अपने पर से मेरे सीने को मस किया, मेरे दिल की बेचैनी खत्म हो गई, मेरे दिल का इस्तिराब खत्म हो गया, मेरे दिल की बेचैनी खत्म हो गई। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं लंबी लंबी खूबसूरत पतली दुबली हसीन लड़कियां खड़ी हुई हैं। देखो कौन आए हैं? आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमना के आंगन में हजरत आमना फरमाती अब्दे मनाफ के खानदान की तरह लंबी पतली दुबली खूबसूरत लड़कियां मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हैं। और इतने में अभी मैं देख ही रही थी कि एक खातून आगे बढ़ी और कहा आमना घबराना मत, मैं हवा हूँ, तुम्हारी खिदमत में आ गई हूँ। दूसरी आगे बढ़ती है आमना घबराना मत, मैं आसिया हूँ, तुम्हारी खिदमत में आ गई हूँ। तीसरी औरत आगे बढ़ती और कहती आमना घबराना मत, मैं हाजरा हूँ, तुम्हारी खिदमत में आ गई हूँ। चौथी आगे बढ़ती और कहती आमना घबराना मत, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ, तुम्हारी खिदमत में आ गई हो। अरे देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं। वाह क्या शान मुस्तफा है, वाह वाह क्या सैयदा और सैयदा आमना का मकाम और मर्तबा है। यहाँ नूरे मोहम्मदी आज खानदाने गीती में तशरीफ लाने वाला है कि अल्लाह ताला ने जद्दा से और कब्रिस्तान से, कब्र से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उठाया और कहा मेरे महबूब की वालिदा की खिदमत में पहुंच जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह ताला ने कब्र से मरियम को उठाया और कहा आमना की खिदमत में पहुंच जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। इसी तरह हाजरा को कब्र से उठाया अल्लाह ने और कहा मेरे महबूब की वालिदा की खिदमत में पहुंच जाओ, मेरा महबूब आने वाला है। अरे फिर कहो ना कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है कि मेरे घर में नूर दाखिल हुआ। जब मसला मसाइल बयान किया जाए ना तो खामोशी से, तवज्जो से एकदम चुप मसला सुना। लेकिन जब शाने मुस्तफ़ा बयान होना, जब शाने मोहम्मदी बयान होना, जब आका की अजमत बयान करना होना, तो वहाँ चुप और खामोश नहीं सुनना है, मस्ती में झूम कर सुनना है, मस्ती में झूम कर सुनना है, इश्क में डूब कर सुनना है। इश्क इंसान को कलंदर बुआली बनाता है। इश्क अरे बोलो ना, इश्क इंसान को कलंदर बुआली बनाता है। इश्क इंसान को कलंदर बुआली बनाता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली बनाता है, पागल को वली बनाता है। सुभान अल्लाह, वजन के बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत सैयदा आमना फरमाती है कि एक नूर दाखिल हुआ और उस नूर की वजह से मैंने अपने घर में बैठे बैठे 1500 किलोमीटर दूर मुल्क शाम के महलात को देख लिया, मकानात को देख लिया, मुल्क शाम की गलियों को देख लिया। अल्लाह अकबर। देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। एक नूर दाखिल हुआ और नूर जब दाखिल हुआ ना तो फारस का आतिश कदा बुझ गया। कैसर किसरा के 14 कुंगुरे गिर गए। शायद दरियाए सादा जो 1000 साल से रवा था वो बिल्कुल खुश्क हो गया। दुनिया में जितने बादशाह थे ना सबके महल में दरार पैदा हो गया। हजरत आमना ने 1500 किलोमीटर दूर मुल्क शाम की गलियों को देख लिया। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है कि एक नूर तेजी से दाखिल हुआ और मेरा लाल मोहम्मद अरबी की विलादत हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर की विलादत हो गई मेरे साथ, सब दिल जमाई के साथ, बिल्कुल दिल को मेरी तरफ, बल्कि हुजूर के तसव्वुर में हुजूर की विलादत हो गई है। सारे
हुजूर की तरफ लगाओ और दिल से पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअना इंदल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दुर्रल्लाहिल मगलूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सिर्रल्लाहिल मखजूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी। मुसलमानों, हुजूर की विलादत हो गई है, दिल में कोई तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, तो उसको जमा करो और कहो दिल ही दिल में आहिस्ता से मेरे साथ, या अल्लाह तेरे हुजूर की विलादत का, पैदाइश का जिक्र चल रहा है, इसी सदके में हमारी दिली तमन्ना को पूरी फरमा दे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। नूर के साथ हुजूर की विलादत हुई, देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं, आमना के आंगन में। अच्छा, हुजूर की विलादत हो गई है, देखो देखो, तवज्जो करो और खास तवज्जो करो, हुजूर पैदा हो रहे हैं मगर खून का एक कतरा, जोर से बोलो, नहीं है। खून का एक कतरा, गिलाजत का एक कतरा, नापाकी का एक कतरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, हुजूर पैदा हुए, ना खून है, ना थप्पा है, ना नापाकी है, ना गिलाजत है, इस शान से पैदा हो रहे हैं कि नाफ कटी हुई है, खतना शुदा है, हुजूर पैदा हो रहे हैं, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, हुजूर पैदा हो रहे हैं, जुल्फे सवरी हुई है, हुजूर पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल पाक, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल ताहिर, बिल्कुल साफ, जरा भी कोई दूर दूर तक नापाकी नहीं। तैयब पैदा हुए, ताहिर पैदा हुए, पाक पैदा हुए, पाक पैदा हुए, साफ पैदा हुए। अरे कहो ना कि देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, देखो कौन आए हैं आमना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमना के आंगन में। मुस्तफा पांव चलते थे, मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पांव बिछाए हैं आमना के आंगन में, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। हाँ, यूं कहो और आला हजरत की ज़बानी कहो, आला हजरत ने कहा, सुभान अल्लाह बोलो, आला हजरत असीमुल बरकत, आकाए नेमत, दरियाए रहमत, पैकरेल मोहिकमत, महदिये बिदात, कातिये कुफ्र ज़लालत, रफ़ीउद दराजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सुवालात, आलिमुल हवालात, सैयदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, कायदे फौज इस्लाम, दाफे जूस असनाम, ताजदारे अहले सुनन, इमाम इल्म-ओ-फन, शरीयत इमाम, तरीक़त इमाम, मारिफत इमाम, हकीकत इमाम, इश्क इमाम, आला इमाम, औला इमाम, वाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, सैयद इमाम, सनदी इमाम आला हज़रत अल हुजूर अल हाफिज अल कारी अल मौलवी अल मौलाना अल आलिम अल फाजिल अल कामिल अल आरिफ अल आशिक अल मुहक्किक अल मुहद्दिस अल मुनाज़िर अल शेख अल इमाम अहमद रज़ा खान कुतुब ज़मान की तरह विलादत पढ़ो और यूं कहो, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे दान सबका नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं कहता तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे दान सबका नूर का। और नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, और तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। खड़े होके दो आदमी नारा लगाओ, दोनों महल्ले से, इस महल्ले से भी
देखो कौन आए हैं, रहमतों के साए हैं। आमिना के आंगन में पाँव पाँव चलते थे मुस्तफा, फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। और सुनो सुनो हुजूर तशरीफ ले आए, बोलो सुभान अल्लाह। किस शान से तशरीफ लाए हैं ये देखो। शुभ तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नार का। हुजूर पैदा हुए विलादत हुई, नूर छा गया। बायां हाथ यूं मिट्टी में रखा और दायां हाथ यूं उठाया। नहीं सुनने का ढंग यार, ये बरेली शरीफ के करीब के लोग हो आप लोग, उन्नाव बताओ तारीखी जगह और इतना ठंडा सुनोगे। मैंने समझाया कि हुजूर की फजीलत बयान हो रही है, इश्क मस्ती में झूम कर बोलो। हर अच्छी बात में इसी तरह बोलो, वरना मैं वही खत्म कर दूंगा। मेरे ख्याल से 2 घंटा तकरीर हो गई, नबी साहब बोल रहे हैं 1 घंटा तकरीर होती है। एक बाहर से आने वाले मुकर्रिम की कितनी तकरीर होती है? 1 घंटा, सवा घंटा खत्म। 2 घंटे हो गए हैं, बोलूं या खत्म ही कर दूं? हाँ तो फिर आप लोग भी बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर ने बायां हाथ मिट्टी में रखा है, दायां हाथ यूं आसमान की तरफ यूं यूं देखो यूं उठाकर एक उंगली शहादत यूं उठाया है। गोया हुजूर पैदा होते ही गवाही दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे देखो कौन आए हैं, आमना के आंगन में रहमतों के साए हैं। और फौरन फिर हुजूर ने यूं दोनों हाथ को रखा यूं, और यूं रखने के बाद पेशानी को सजदे में रखा और एक लंबा सजदा किया। हजरत शिफा कहती है कि जब हुजूर ने सजदा किया पैदा होते ही, तो मैंने तवज्जो किया हुजूर कुछ बोल भी रहे हैं क्या। तो शिफा कहती है मैंने तवज्जो किया, हुजूर के लम्हाए नबुवत हिल रहे थे और कह रहे थे रब्बी हवली उम्मती, रब्बी हवली उम्मती, रब्बी हवली उम्मती। कहो रमजान हैदर कादरी फिरदौसी के साथ कि देखो कौन आए हैं, रहमतों के साए हैं। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमना के आंगन में। अल्लाह अकबर। आमना फरमाती है मेरे बेटे ने लंबा सजदा किया। लंबा सजदा किया। हजरत आमना फरमाती है कि उठाया मैंने, गोद में रखा कि इतने में धुंध मेरे घर में दाखिल हो गया। और जब धुंध दाखिल हुआ तो मेरे घर में अंधेरा हो गया, फौरन आंखों के सामने अंधेरा हो गया। और जब आंखों के सामने अंधेरा हुआ कि मुझको लगा कि मेरे गोद से मेरा लाल, मेरा बेटा गायब है। और अभी मुझको लगा ही कि गायब है, इतने में एक आवाज आती है, गैबी आवाज, यतूफू बिही मशारिकल अर्दी व मगारिबहा लियारफू बिइस्मिही व नातिही व सिफातिही। गैबी आवाज आई, इस बच्चे को मशरिक व मगरिब और पूरी कायनात में घुमाओ ताकि जहान वाले इनका नाम जान जाए, इनकी सिफात जान जाए। कहो ना रमजान हैदर के साथ मिलकर कि देखो कौन आए हैं, देखो कौन आए